सब कुछ बदल गया मेरा, चल जर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया आखरी उम्मीद मेरी टुट किते जावी ना लुटी होई नू वे जानी लुट किते जावी ना तू आखरी उम्मीद मेरी टुट किते जावी ना लुटी होई नू वे जानी लुट किते जावी ना मैं झूठ बदलदा वेख्या मैं सच बदलदा वेख्या मैं बदलदे पत्थर वेखे ने मैं कच बदलदा वेख्या सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल जर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया जे लोड़ नहीं है हुण मेरी मूंह ते मेरे बोलवे मंगना सलाहां जाके पर लोकां कोल वे जे देना है ते दिल नाल साथ देवी मेरा तू जे रोलना भी है ते फिर चंगी तरह रोल वे मैं जग बदलदा वेखे तारे बदलदे वेखे मैं हाय लोड़ पैण ते दुनिया च सारे बदलदे वेखे मैं सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल जर ही जावांगी जे हुन तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी that was a beautiful song sung by Amy Work ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੰਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੁਨ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਜਗ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਜ਼ੀਅਨ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਜਨਰਲ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮਸ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੁੱਧ ਯੋਗਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਤਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ 320 ਕੈਸਲ ਸਟਰੀਟ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਓਪਨ 7 days ਐਂਪਲ ਆਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 0336588786 0336586 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਯੈਸ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਮਲਟੀ ਐਥਨਿਕ ਸਟਾਫ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਟੋਂਗਾ ਇਰਾਕ ਸਮੋਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ
And the good news is, register now for free legal clinic every Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. Legal Associates, Level 131 East Tamaki Road, Papatoetoy, Auckland 2025. Call 092 799 439. ਮਿਠਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਵਾਦ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਹਿਕ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਠਾਈ ਛੱਡਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਨੋਵਲਟੀ ਸਵੀਟਸ ਦਾ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਉਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਮਿੱਠਾ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਵਲਟੀ ਸਵੀਟਸ ਜੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, 100% ਵੈਜ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਚਾਟ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਆਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਨੋਵਲਟੀ Sweets, 50 Wordsworth Street, Sydenham, Christchurch. Call 03-365-2677 03-365 2677। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਰੈਡਸਟੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੋਮਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਫ੍ਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੈਬੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 022 698 7837 022 698 7837 ਜਾਂ 021 315 304 021 315 304। Radio Sadyala Traffic Report, proudly sponsored by Redstone Financial Services. ਓਕੇ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਕਲੈਂਡ ਹਾਈਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ 1 ਦੀ ਤਰਫ। ਜਨਾਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਡੂਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਲ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਟਰਸਟਮ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨੌਰਥ ਕੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਨੇਵਾ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਸ਼ੈਲੀ ਬੀਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਂਸ ਹਵੇ ਹੌਬਸਨ ਤੱਕ। ਖੈਬਰ ਐਸਟੀ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਐਲਐਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਂਟ ਫਿਲਿੰਗਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਹਾਈਬਰੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੈ। I mean 30 ਦੀ ਸਪੀਡ, ਰੂਡਾਊਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਪਾਕੁਰਾ ਤੇ ਡੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਰੋਡਸ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ 20 ਦੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ 16 ਤੇ ਵਾਟਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਮਾਯੂਰੋ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ। ਕੁਈਨਸਟਾਊਨ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਵਨਹੰਗਾ, ਵਾਮਸਲੇ, ਮੈਸੀ, ਰੋਸਕਮਨ, ਲੈਂਬੀ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਾਮਸਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲੌਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਪਫੁਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ 28 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਬਟ ਜਾਰਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 30 ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਰਹੇਗੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। Radio Sadyala Time Check, proudly sponsored by Kiwiana Immigration. ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। You're listening Radio Sadyala, your number one Punjabi radio station. And now we are with you at Hamilton, Tibuki, Tauranga and Christchurch. To listen to your favorite song, call us on our toll-free number 0508 11 13 13. And for latest updates, like us on our Radio Sadyala Facebook page. ਲੋ ਜੀ ਲੋਕੋ, 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੰਦ ਦਹਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਲਾਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੂਲਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੌਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਸੇਫ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੂਡ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਬਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੋਹਰ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਬਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਹਰਬਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਊਟੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਨਾਬ ਇੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੈਲਥ ਬਿਊਟੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਲਿਸਨਰਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕੋ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਗਤ ਸਾਂਭਲੀਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਨੇ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ सैयद मोहम्मद फैसल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत घट आवाज आ रही है, की हाल चाल ने फैसल ताड़े? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले बहुत शुक्रिया आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने का और मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। यू डिजर्व इट एक्चुअली। अच्छा जी मैं तुहानू दसदे चला फैसल नू उर्दू ही बोलनी आती है, पंजाबी नहीं बोलनी आती, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम से थोड़ी बहुत पंजाबी जरूर इन्होंने बुलवा के असीं भेजीए, इंज नहीं जान देंगे, ठीक है। तो सैकेंडली बड़े ही पोलाइट बंदे ने, बड़ी मतलब धीमा लहजा है ना इन्हां दा, सो इसलिए बड़े आराम नाल बोल रहे हैं। लेकिन असीं चाहांगे फैसल साडे शो च थोड़ी जी एनर्जी दे नाल थोड़ी जी आवाज़ कट के बोलो ताकि लिसनर्स नूं सही तरह तुहाडी आवाज़ जा सके। होने यार रोज़ा तो नहीं लग रहा फैसल? नहीं चले, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा लाउड बोलूं। हाँ जी और बिल्कुल, आपकी सामीन जो उनसे वो मेरी आवाज साफ सुन सके। बिल्कुल। अच्छा जी मैंने लगता है कि मैं पंजाबी च गल करांगी, फैसल उर्दू च मेरी अपनी पंजाबी कितने गायब ना हो जाए, सो इट्स ओके। अच्छा फैसल सबसे पहले तो आपका रमजानुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपका रमजान। और कैसा चल रहा है आपका रमजान ये बताइए? खैर मुबारक, और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा तो आज बड़ी ढेर सारी हमने आपसे जो ना अपनी हमारी जो प्रॉब्लम्स थी ना उनकी सोल्यूशन हमें चाहिए आपसे। जी फरमाइए। जी सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ना कि चूंकि रमज़ान चल रहा है, ठीक है, ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सर में दर्द रहता है या माइग्रेन है, ऐसे लोग उनके लिए रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। वो क्या ऐसा खाएं कि मतलब सहरी में कि उनको माइग्रेन भी ना हो और रोज़ा भी बड़ी आसानी से जो है ना वो रख सकें? ऐसे कुछ टिप्स हम आपसे चाहेंगे फैसल। अच्छा ठीक है आयशा, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि सहरी जो उनसी है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। हैवी नहीं होनी चाहिए? वो लोग क्या करें जो एक पराठा रूटीन में खाते थे लेकिन सहरी में वो 3 पराठों पे आ गए हैं? नहीं देखें, इसमें 2 चीजें, एक चीज होती है हैवी, एक चीज होती है एनर्जेटिक। exactly. तो ऐसी डाइट लेनी है जो एनर्जेटिक हो और आपको बहुत देर तक एनर्जी तो दे, लेकिन यह है कि आपके पेट में ब्लोटिंग गैसेस ना हो जिसकी वजह से सर दर्द अमूमन हो जाता है। अच्छा तो वो किस किस्म की डाइट होगी? हाँ तो उसके लिए जो उनसे दलिया बहुत अच्छा रहता है, जौ का दलिया हो, साथ फ्रूट्स हो, लस्सी हो, दही हो, दूध हो, ये वो चीजें जो सहरी में खाने से आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहेगी और आपको जो उनसे किसी किस्म का गैसेस वगैरह नहीं होंगी जिससे फिर सर में दर्द हो या भारीपन महसूस हो आपको। सही मतलब सो लिसनर्स आई होप कि तुम सुन रहे हो इस वक्त डाइट सानू कैसी लेनी चाहिए ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ क्योंकि डॉक्टर फैसल ने सानू दस दिता कि ऐसी डाइट ही सानू सहरी च लेनी चाहिए। अच्छा तो फैसल जिन लोगों का ख्याल है कि जब तक हम ज़्यादा ढेर सारा नहीं खाएंगे तो वो तो मतलब कुछ भी खा लेंगे, मेरा ख्याल है 3-4 घंटे बाद वो डाइजेस्ट होना ही है, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जितना मर्जी पानी पी लें उसने स्टोर नहीं होना, ऊंट की तरह। मर्जी पराठे खा लें उसने भी थोड़ी देर के बाद डाइजेस्ट होके फ्लश आउट हो जाना है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए कुछ लोगों का ये ख्याल होता है, उनको चाहिए, उनके लिए अगर आप कहती हो तो एक कहवा बताता हूँ, के बाद कहवा पी लें तो उनको डाइजेशन बेहतर हो जाएगा। हाँ तो बताइए ना, आज आपके फुल हम फायदा उठाना चाहते हैं, डॉक्टर फैसल आए हैं तो हमें ऐसे टिप्स जरूर दें। जरूर। अगर जो लोग कहवा ये पराठे वगैरह ज्यादा खाने के शौकीन हैं तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा पहले उठें, सहरी का टाइम पहले कर लें थोड़ा सा,
और उसके 15 मिनट के बाद सौंफ का और दालचीनी का और अदरक का कहवा बना के पी लें। अच्छा। सौंफ, अदरक और दालचीनी का कहवा बना के पी लें। उससे यह है कि इनकी डाइजेशन भी ठीक रहेगी और उसके बाद इनको जो सा हैवीनेस है वो भी फील नहीं होगी, तो उनका शौक भी पूरा हो जाएगा ज्यादा खाने का। सही। और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सही। हमारे एक लिसनर ने हमसे सवाल पूछा कि मेरे सीने में जलन होती है और पराठे के बगैर भी नहीं रह सकता। सो आई थिंक ये जो आपने रेमेडी दी है ये बिल्कुल उनके लिए है ना? ये वाला कहवा उनके लिए परफेक्ट है। परफेक्ट है। अच्छा, सीने में जलन जो है ये किस वजह से होती है? इसकी क्या मतलब वजूहात हैं? एसिडिटी है, बर्निंग जो उनसी है वो एसिडिटी की वजह से होती है, और एसिडिटी हर उस खुराक से होगी जो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो इसलिए जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं, जैसे अभी आपने शुरू में बात की कि रिफाइंड ऑयल्स है जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इनको जितना हम कम कर देंगे अपनी ग़िज़ा में से, उतना हम हेल्दी लाइफ की तरफ चले जाएंगे। सही सही। तो प्योर चीजें तो हमें मिलती नहीं फैसल, है ना? मार्केट्स में अवेलेबल चीजें मिलनी मुश्किल हैं, लेकिन ये कि ढूंढी जाए तो आजकल तो अवेयरनेस जरा काफी हो गई है। पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी है तो इंटरनेशनली भी अवेलेबिलिटी जरूर होगी। बिल्कुल, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, और ऑर्गेनिक, स्पेशली जो ऑर्गेनिक फूड हम यूज करते हैं या स्पेशली जो वेजिटेबल्स हैं उनको तो हम घर में भी बहुत इजीली जो है ना ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत जरूर है। बिल्कुल, किचन गार्डनिंग जो उनसे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिक सी चीजें हैं उसको तो आप अपने किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो फैसल, मुझे ये बताएं लॉकडाउन में क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? लॉकडाउन में हम ऑनलाइन कंसल्टेंसीज कर रहे हैं या होम डिलीवरीज मेडिसिन वगैरह की कर रहे हैं, लेकिन ये कि क्लिनिक्स हमारे जो उनसे वो 6-7 बजे तक खुले होते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर ये कि सारा बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। सो रमजान में मेरा ख्याल है रमजान के साथ साथ लॉकडाउन भी है, चूंकि यू बिलोंग टू पाकिस्तान, सो डेफिनेटली पाकिस्तान में इस वक्त लॉकडाउन भी चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन का अगर कोई फायदा है तो वो ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये है कि बहुत लंबे लॉकडाउन में फिर आपको परेशानी होती है। बिल्कुल, लेकिन हमने हर चीज में से पॉजिटिविटी ढूंढनी है ना। हाँ जी, बस दुआ है कि अल्लाह ताला सब तरफ खैर खैरियत रखे और इन मसाइल से छुटकारा दिलाए। सही। अच्छा फैसल, मेरी एक स्पेशली मुझे एक लिसनर ने कहा था जी डॉक्टर फैसल आपके शो में आ रहे हैं, आपने लाजमी पूछना है कि रमजान में जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनके लिए कोई ऐसा प्लान बताएं कि वो ऐसा क्या खाएं, किस तरीके से जो है ना अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, वेट रिड्यूस तो रमजान में बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। अच्छा। मेरा ख्याल है आइडियल टाइम होता है वेट रिड्यूस करने के लिए रमजान शरीफ। बिल्कुल। उसमें सुबह नाश्ते में या सहरी में जो उनसे आपने वही जो मैंने पहले बताया कि जौ का दलिया इस्तेमाल करना है, उसमें आपने थोड़े से नट्स और कोई एक फ्रूट इस्तेमाल करना है। सही, ठीक। इफ्तार में आप चाहें तो एक छोटा समोसा। और वो जौ का दलिया जो है हम दूध में बनाएंगे, राइट? नहीं, जौ का दलिया अगर हमने स्लिमिंग के लिए यूज करना है तो पानी में बनाएंगे और बाद में उसमें हम दूध ऐड करेंगे। ठीक है। और इसमें हम शुगर की जगह क्या यूज कर सकते हैं? ब्राउन शुगर? आप हनी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हनी इज द बेस्ट ऑप्शन। राइट, नो डाउट। ठीक है। अदरवाइज ये है कि खजूर या छुआरा डाल के उसमें अगर पकाएंगे तो फिर हमें इस आर्टिफिशियल या हनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है। तो उसके बाद आपने एक कोई सा भी फ्रूट लेना है और उसके बाद आप चाहें तो लस्सी का एक गिलास पी लें। सही। ये आपकी बेस्ट सहरी हो जाती है। इससे पेट भर जाएगा? आप जौ का दलिया जितना मर्जी खा लें, उसकी एनर्जी जो सी है वो बढ़ेगी, लेकिन यह है कि आपकी कैलोरीज बहुत नहीं बढ़ेंगी। तो आप एक बड़ा वाला प्याला अगर वो खा लेते हैं और साथ आधा गिलास दूध और आधा गिलास लस्सी का पी लेते हैं तो दैट इज फुल मील। गुड हो गया। ओके, ये होगी हमारी सहरी। लेट्स कम टुवर्ड्स इफ्तारी। अच्छा, इफ्तारी में यह है कि आपने खजूर से रोजा खोलना है। सही। ठीक है। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि फ्राइड चीजें मत खाएं। अगर आपने फ्राइड आइटम्स खाने भी हैं तो एक पकौड़ा या एक समोसा, इससे एक्सीड नहीं करना आपने। सही। टेम्पटेशन भी पूरी हो जाएगी। एग्जैक्टली। उसके बाद आप अपने जोन से भी आप सबसे बेहतर रहता है कि इस टाइम पे आप सिकंजबीन का इस्तेमाल करें, लीमू पानी का इस्तेमाल करें। सही। अच्छा, ये जो दूध सोडा का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, मतलब दूध सोडा के बगैर इफ्तारी पूरी नहीं होती है ना? तो थोड़े से इस पे भी मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप जरूर सुनने वालों को बताएं कि दूध सोडा है क्या, जो समझते हैं लोग कि बड़ा एनर्जेटिक है, इसके जरा बताइए डिसएडवांटेजेस क्या क्या है।
इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हमने रोजा खोलते ही खाली पेट जो सा है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के चीजें हमने अपने पेट में डाल दी, जिससे उसका पीएच लेवल जो सा है वो चेंज हो जाता है। ट्रू। ठीक है, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एकदम कोई एसिडिक चीज जाती है तो उसका पीएच चेंज हो जाता है, जो कि बाद में प्रॉब्लम देता है। लोगों का ये ख्याल है कि वो फौरी तौर पे उनको डिकारें आ जाती हैं, वो आ जाता है तो वो समझते हैं हमें रिलीफ हो गया। बिल्कुल। जबकि ये इसके ऑपोजिट होता है, थोड़ी देर के बाद उनको ब्लोटिंग वगैरह ज्यादा स्टार्ट हो सकती है। सही। तो इसलिए इसकी एहतियात करें, और सबसे अच्छा है कि शिकंजबीन नींबू पानी का इस्तेमाल करें। ट्रू, ओके, सही। अच्छा, नींबू पानी में वेरिएशन दी जा सकती है हर एरिया के हिसाब से। जैसे फर्ज कीजिए स्ट्रॉबेरी का मौसम है तो आप नींबू पानी में स्ट्रॉबेरी डाल लीजिए, तो उससे स्ट्रॉबेरी लेमनेड बन जाएगा। वाओ, गुड रेसिपी। आप अच्छा, उसमें डॉक्टर फैसल जो लीची डाल लीजिए तो वो लीची बन जाएगा। कुकिंग स्किल्स भी हैं डॉक्टर फैसल में, जो कि हम अक्सर देखते हैं फेसबुक पे। किसी दिन डॉक्टर फैसल की कुकिंग स्किल्स भी सामने लेकर आएंगे किसी और शो में। अच्छा चले, ठीक है, बन गया, शिकंजबीन बन गई, स्ट्रॉबेरी की बन गई, बड़ी मजेदार रेसिपी एक हमारे साथ आपने। स्ट्रॉबेरी बना लीजिए, लीची की बना लीजिए, तो जरा वेरिएशन भी आ जाती है और इंसान बोर भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने अपना नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद आपने जो भी खाना खाना है, ठीक है, जो भी आपने खाना है उसका 25% पोर्शन छोड़ दीजिए। सही, ठीक है, भूख रख के खाना जिसको कहते हैं। हाँ, आपने 25% अगर इफ्तार में आपने खाना छोड़ दिया तो आप देखिएगा कि विद इन अ वीक आपको अपने वेट में रिडक्शन महसूस होना शुरू हो जाएगी। वाह, तो खाने में हमें क्या खाना है? ये तो बड़ा छोटा सा मेन्यू था। मतलब वो लोग जो पहले इफ्तारी करते हैं बकायदा, रोल, समोसे, पकोड़े, कचौरियां, ठीक है, और उसके बाद खाना भी खाना होता है, ठीक है, और फिर हमें कहवा पी के, सिर्फ कहवा पी के हमें लगता है कि हमने जो है ना वो वापस अपने वेट रिड्यूस की तरफ हम आ जाएंगे। अगर हमने इतना खा लिया तो कोई बात नहीं, कहवा पी लिया, हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। देखिए, कहवा क्या करेगा, डाइजेशन को बेहतर कर देगा, लेकिन कहवा आपको डायरेक्ट स्लिमिंग की तरफ नहीं लेके जाएगा, वेट लॉस की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो वहां पे आपको जरूर अपनी जो सी डाइट है उसको कट डाउन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ज्यादा खाना चाहते हैं तो फिर आप बारबेक्यू ले सकते हैं। ओके, बारबेक्यू ले सकते हैं। ठीक है, बारबेक्यू ले सकते हैं। किसी ऐसी चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा मसालों के साथ ना हो, जिसको हम कहते हैं ग्रेवी। हमारे आम जो सालन होते हैं घर के, जिसके ऊपर तरी तैर रही होती है, तेल और घी तैर रहा होता है, बिल्कुल उसको हटा दीजिए, और जो आपकी चपाती है उसका साइज छोटा करके खा लीजिए। तो आपको ये लगेगा कि आपने अपनी पूरी एक चपाती भी खा ली, और बारबेक्यू के साथ ये तरी हटाने के बाद आपने सालन खा लिया, तो वो एक फुलनेस की फीलिंग होती है, वो भी आपको आ जाएगी। गुड। सो आई थिंक ये इफ्तारी होगी, खाना भी हो गया, इफ्तारी भी हो गई। और इफ्तारी और खाने के दरमियान में कोशिश कीजिए कि कोई 1-2 फ्रूट्स आपने जरूर लेने, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो जाया ना हो। ट्रू, वेरी ट्रू, सही हो गया। सो बाद में कोई हम ले सकते हैं कोई चाय, कॉफी, कुछ अगर तलब हो रही है तो? एनीथिंग बिल्कुल ले सकते हैं। चाय, 1 कप चाय, या सहरी में और इफ्तारी में 2 कप चाय जो उनसा दिन में, वो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं। अच्छा फैसल, ऐसा होता है अक्सर इफ्तारी करने के बाद ना एक बड़ी फटीगनेस होती है और बड़ी जो है ना बोझल सी तबीयत होती है कि बस इफ्तारी की और वो गया बंदा। हाँ, सो ऐसे में क्या मतलब थोड़ा सा खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए कोई ऐसी ड्रिंक या कोई ऐसी चाय है कि बाद में भी आप एक्टिव रहें? हाँ बिल्कुल, असल में ये वही वाली बात आ गई कि हम इतने हैवी और फ्राइड चीजें खा लेते हैं कि हमारी तबीयत बोझल हो जाती है। तो उसके बाद आप सिर्फ एक काम कीजिए कि एक छोटा सा टुकड़ा आलू का, कच्चे आलू का, सही, ठीक है, इफ्तारी के या सहरी के बाद जब भी ऐसी फीलिंग हो, और सहरी का टाइम आपके पास मौजूद हो, इफ्तारी के बाद तो खुला टाइम है, तो आपने जो सा है आलू का एक छोटा सा टुकड़ा टॉफी साइज का, सही, काट के कच्चा आलू मुंह में रख लीजिए, और उसको हल्का हल्का च्यू करते रहिए, जैसे हम टॉफी को तोड़ते हैं और हल्का हल्का उसको हम चूसते रहते हैं। तो इसका जो उनसा रस है वो आप पीते जाएं, और फोक जो उनसा है आलू का उसको आप फेंक दीजिएगा 5 मिनट के बाद। अच्छा, तो आलू का ये जो रस आपके पेट में जाएगा, ये आपको एकदम फौरी तौर पे चीजों को डाइजेस्ट करेगा और आपको एक फ्रेशनेस की फीलिंग आ जाएगी। ये डेली बेसिस पे कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं। दूसरी चीज जो उनसी है वो सौंफ इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको बोझलपन महसूस हो रहा है और
सुस्ती आ गई है तो आप थोड़ी सी सौंफ मुंह में रख लें और उसको इसी तरह से चबाते रहें, तो उससे भी आपको एकदम फ्रेशनेस की फीलिंग वैसे चाय में भी ऐड कर सकते हैं ये तो हम। अब वो भी कर सकते हैं, वैसे भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसे खाना जो सा ये ज्यादा फायदेमंद होगा इस कंडीशन में। गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे एक लिसनर पूछ रहे हैं कि लींबू पानी से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ और ऑल्टरनेट? कुछ और ऑल्टरनेट भी मिल सकते हैं। अगर वाटरमेलन का सीजन है या किसी भी मेलन का सीजन है तो मेलन इटसेल्फ जो सा है वेट लॉस के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। आप उसका ड्रिंक बना के रख लीजिए और आप उसमें थोड़ा सा काला नमक और जरा सी काली मिर्च डाल के उसका इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जबरदस्त जबरदस्त फैसल, क्या बात है। लिसनर्स के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, आज के प्रोग्राम में हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। फैसल को इंशाल्लाह फैसल हम दोबारा जरूर आपको जहमत देंगे, अब प्रोग्राम में तंग करते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। जाते जाते मुझे ये बताइए, पंजाबी बिल्कुल क्यों नहीं आती? थोड़ी सी भी नहीं बोलनी आती, क्यों नहीं आती? वजह दस्तो इसके लिए बहुत माजरत, आप सबसे बहुत माजरत। आनी चाहिए, लैंग्वेजेस आनी चाहिए। पंजाबी तो साड़ी अपनी जुबान अगले है ना। प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ थोड़ी बहुत आपसे बोलूं पंजाबी। बिल्कुल, अगले प्रोग्राम च फुल टाइम पंजाबी सुनांगे ਅਸੀਂ फैसल किलो। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये चीज ओके, थैंक यू वेरी मच फैसल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर से आपको जहमत देंगे किसी और टॉपिक प्रॉपर जो है ना टॉपिक के साथ, कि फैसल इस पे जरा आके जो है ना बड़े वाले बल्ब से रोशनी डालें और जो है ना अपने लिसनर्स को बताएं कि इनके क्या क्या हल हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। You're welcome. You too. Thank you very much for your participation. There was Faisal with us, so definitely बड़े कट वक्त जो उन्होंने, मैं वापस उर्दू वाली जा रही थी, बड़े कट वक्त जो उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्स दसियां ने, तो बाकी जिन्होंने लोगों की रह गई ने ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम से ज़्यादा टाइम लिए इन्होंने बुलावांगे, सो डेफिनेटली ज़्यादा ताड़े क्वेश्चन पूछांगे। ठीक है जी। सो फिलहाल टाइम हो गया एक छोटी जी टीनी मिनी कमर्शियल ब्रेक दा। साढ़े नाल रहो, असी बस हुणे गए तो हुणे वापस आए, वापस आके ताड़े को इजाजत लांगे। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक। ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ ਪਰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵੇ? ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ, ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟੀਮ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਹੋਲਸੇਲ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਕਾਪਰ ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਐਂਡ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 021 054 5460 ਤੇ 021 054 5460 ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਂਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜਿਸ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਫਰੈਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। IMM ਕੀ ਮਤਲਬ? IMM ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨੀ ਮਾਰਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨੀ ਮਾਰਟ, 355 ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਊਥ ਰੋਡ, ਪਾਪਾਟੋਚੋਏ। ਕਾਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 0927 89454 0927 99454। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਬਿਲਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਐਂਡ ਨਿਊ ਬਿਲਡਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਿਲਡਸ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 years ਦੀ NZCB ਵਾਰੰਟੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਾਲ 021 189 9009 021 199 9009 ਤੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ?
ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨਗੇ ਨੇਥਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ, ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੋਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇਥਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਾਲ 0800 100 300। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। वापस आ चुके हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਐਸਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, weight loss ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਡੋਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਵਨ ਆ, ਗੁੱਡ ਵਨ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਸ ਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਿਪਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਨ ਏਅਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੰਡਲ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਫॉर योर फीडबैक, फॉर योर ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, फॉर योर लव एंड फॉर एवरीथिंग। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਜੋ ਟਿਪਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ weight ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਖਾਓ, ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਖੂਬ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਇਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ signing off now. A very beautiful one and this is mere Mola karam ho karam. Goodbye, Allah Hafiz and Rab Rakha.